एवं 28 अन्य विधायकों से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की हाल ही में आयोजित भर्ती में निष्पक्ष, समय और पारदर्शी विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव संख्या 3 प्राप्त हुआ है। इसको मैंने स्वीकार कर लिया था और दिनांक 24/2/2026 को मैंने इस पर चर्चा के लिए आज दिनांक 25/2/2026 का समय निर्धारित किया था। इसलिए अब इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 के तहत इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सभी दलों से विनती है कि वे अपने तय समय में ही अपनी बात रखें। इस समय में जो सदस्य बोलना चाहते हैं अपने नेता या व्हिप के माध्यम से अपने नाम भिजवा दें। सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें ताकि सरकार का जवाब भी समय पर आ सके। माननीय सदस्यगण, अब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। स्पीकर सर, वी सीक टू मूव एडजॉर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 of the Haryana Rules Procedure and Conduct Business to discuss matter of urgent public importance, the recent complete and systematic collapse of recruitment process under both SSC and HPSC. The state recruitment machinery stands thoroughly discredited. 8,653 advertised posts have been withdrawn recently. Examination of Gram Sachiv, Patwari, PGT teachers, constable and assistant professors have been cancelled repeatedly on account of paper leaks, procedural irregularities and outright criminal malpractice, with FIR standing registered in SSC linked cases alone. The rot runs so deep that the Commission cannot even set their own question paper. The most recent paper set by HPSC had 32 questions in the assistant professor geography paper that were copied verbatim from Bihar Public Service Commission and 24 in the history paper from Chhattisgarh Public Service Commission. The HPSC has ceased to be a selection body. It has become a rejection commission. Since the shift to subjective three-tier evaluation model, the outcomes speak of themselves. Out of 5,100 candidates who sat in the PGT computer science examination whose results were declared recently, only 39 were considered suitable. That is 97.7% of the posts went unfilled, with the zero selection in the Mewat cadre. In the assistant professor English recruitment result declared recently, only 151 candidates out of roughly 2,000 cleared on the disruptive stage, leaving 462 of 613 posts vacant. This happens despite the candidate pool including the UGC, GRF holders, NET qualified scholars and university and medalists. This is not importance in the framework designed to keep Haryana youth out of government employment. Recent data confirm that over 60% of the sanctioned posts, assistant professor posts, lie vacant, with subjects like economic, environment, anthropology, electronics, statistics, and 100% vacancy. Nearly 90% of headmaster posts are unfilled. 40% of the government colleges have no regular principal, and 30,000 teaching posts remain empty. The common eligibility test, sold as a reform, has instead paralyzed hiring. Group D results were declared before Group C recruitment, forcing meritorious candidates into lower posts. Phase 2 examination went unconducted for extended period, and over 8,12,000 qualified candidates sit in indefinite limbo. Recently, Punjab and Haryana High Court struck down the unconstitutional socio-economic
bonus marks affecting 53,000 posts, putting approximately 10,000 employees at risk of termination. Meanwhile, Haryana's own youth are being shut out of many Group A and Group B jobs. Most recently, recruitment results 185 out of 214 power utilities, AE and SDO selections, and 69 out of 80 SDO electoral selections went to non-Haryana domiciles. This current government has reduced the constitutional promise of equal opportunity to an endless cycle of advertisements, cancellation, litigation, and despair. Both the recruitment commission of the state have been turned from instruments of public service into instruments of public betrayal. The House must suspend and its regular business to hold this government accountable. I move this. श्रीमती गीता बुक्कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अंडर रूल 66 हरियाणा रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत एक एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सदन भी इस गंभीर विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ ले। हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर कोई बहुत ज्यादा राजनीति हो। युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और जो अभी रेजोल्यूशन मूव किया गया है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हमारा एडजर्नमेंट मोशन जो मूव हुआ है उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है अध्यक्ष महोदय कि हमारे हरियाणा का युवा इस समय कितना परेशान है। जो हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन एचपीएससी और एसएससी की भर्ती को लेकर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा है उसमें जो आया है सरकार उसको गंभीरता से लेने का काम करे, क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो नेट क्वालिफाइड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने यूजीसी के तहत पास किया है, जो कि जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप जिसको मिली है, जो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यूजीसी के माध्यम से हर पेपर क्वालिफाई कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि एचपीएससी ने इस तरह के रूल और कानून बना दिए कि हमारे इन युवाओं को आज आप 35% पास मार्क्स भी देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यही कारण है हमारे प्रदेश का युवा डंकी के माध्यम से, इलीगल माध्यम से राज्य छोड़कर दूसरे देश और दूसरे प्रदेशों में पलायन करने का कार्य कर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर हम युवाओं को अगर मेरिट के आधार पर भी भर्ती नहीं दे पाएंगे तो उससे ब्रेन ड्रेन होगा, क्राइम बढ़ेगा, हमारा युवा जो है वो ड्रग्स की ओर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहती हूं जो एक एडजर्नमेंट मोशन हमने मूव किया है इस पर कि हमारे इन युवाओं की काबिलियत का हम लोग इनोवेशन में फायदा लगाएं, ना कि उनको इस ओर धकेलने का काम करें। एचपीएससी की ओर से एक न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट किया गया जिसमें यह कहा गया कि एचपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस which will be conducted in 3 phases: screening, subjective knowledge test and the final interview. At every step HPSC set a threshold of 25% for screening. It means 4 times of the advertisement post will be selected for the next step, but for these 4 times will be out of those who will be get at least 25% in the screening. After this stage, candidate will sit for the main exam. At this stage, candidate has to secure 35% marks to go to the next stage, that is the interview. The criteria of 35% marks यही बड़ा हिंड्रेंस है हमारे हरियाणा के युवाओं की नौकरी के लिए। अध्यक्ष महोदय, जो बच्चा नेट जेआरएफ पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर
क्या कारण है कि एचपीएससी के एग्जाम में उसको 35% मार्क्स नहीं मिल रहे हैं? हमारे युवाओं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, यूनिवर्सिटीज की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कॉलेजेस की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कारण है? हमारे बच्चे आईएएस टॉप कर रहे हैं, यूजीसी में टॉप कर रहे हैं, हरियाणा की एचपीएससी में और एसएससी में वो फेल हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक सिलेक्शन बोर्ड है, वो एक रिजेक्शन बोर्ड की तरह कार्य कर रहा है। आज हमारा युवा जब अपने लिए आवाज उठाने का काम करता है तो लाठियों के साथ, पानी की बौछारों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। हमारे सांसद महोदय, विधायक सभी ने उसका समर्थन करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि क्या कारण है? हरियाणा के युवा क्या काबिल नहीं है जो आप बाहर की भर्तियां ज्यादातर करने का काम कर रहे हैं? एचपीएससी के द्वारा विशेष तौर से मैं बात करूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कुल 613 पद थे, केवल 151 बच्चों को पास किया गया, 462 जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडीज में 23 पद थे, 7 को पास किया, 16 खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 43 पद थे, 24 पास हुए, 19 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन 126, 37 छोड़ दीजिए। फिजिक्स में केवल आपने 410 से केवल 100 पास किए, 310 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन, हरियाणा तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 का राज्य है, उसमें भी आपने जो है खाली छोड़ दिए। ये क्या कारण है? पहले तो हम ये कहते थे कि हमारा बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ, बैकवर्ड के साथ, एससी के साथ, डीएससी के साथ, डिसेबल के साथ अन्याय हो रहा है। और आज हमारा हरियाणा का युवा, जनरल कैटेगरी के युवा, इतने काबिल युवा, उनको आप यहां पर लगाने ना लगाकर बाहर के राज्यों के युवाओं को लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किस प्रकार से सारी की सारी बैकलॉग खाली छोड़ा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, उनके हकों को भी नहीं दे रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 35% की वजह से जो मार हमारे युवाओं ने झेली है, उसमें बीसीबी में 130 पद थे, माननीय मंत्री जी 130 पद थे, केवल पास ही 46 किए। बीसीए में 298 पद थे, पास सिर्फ 47 किए गए। एससी में 192 पद थे, पास सिर्फ 23 के पास, अभी तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होना बाकी है। डीएससी में 200 पद थे, एससी कर दिया, डीएससी कर दिया, अच्छा है, हक दें उनको। एससी के 192, डीएससी के 200, पास हुए 6, सेलेक्ट कितने होंगे, 1 या 2? ईडब्ल्यूएस के 196 पद थे, पास हुए सिर्फ 44। क्या कारण है? क्या हमारा युवा इतना काबिल नहीं है? क्यों आप खाली छोड़ना चाहते हैं? और मैं बताऊंगी क्यों हम खाली छोड़ना चाहते हैं। हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से एचपीएससी से आप क्राइटेरिया फिक्स करके बच्चों को बाहर रखने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं हम लोग, नेशनल एजुकेशन, हम लोग एनईपी की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और बच्चों को हम रोजगार देने का जो है काम नहीं करते। हमारे अध्यक्ष महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक में, पॉलिटिकल साइंस में 18 में से 11 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रॉनिक्स में 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के, लेक्चरर ग्रुप में 157 में से 103 बाहर के, एग्जीक्यूटिव में 3 में से 1 बाहर का। हमारे हरियाणा का युवा कहां जाएगा? कहां जाएगा हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा, अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या कारण है हमें रेगुलर नौकरियां नहीं दे रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं है। एचकेआरएम, क्या कारण है? पढ़े लिखे युवाओं को आप फुल सैलरी देकर उनको भर्ती नहीं करने का काम कर रहे हैं। कुल हमारी एग्जीक्यूटिव की जो भर्तियां आई, उसमें से अध्यक्ष महोदय 100 पद थे, 61 खाली पड़े हैं। एडीओ एग्रीकल्चर की खुद पद थे 650 भरे, 550 खाली पड़े हैं। पीजीटी म्यूजिक कुल पद थे 80, 25 भरे, 55 खाली पड़े हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 287, 192 भरे, 95 खाली हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 44 भरे, उसमें से 10 खाली पड़े हैं। ये सभी स्थिति सभी विभागों पर है। क्या कारण है? एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती हमारी 8 साल से पड़ी है, जेबीटी की भर्ती हम लोग कर नहीं रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहती हूं, हमारे बहुत सारे युवा, जुडिशरी की हमारी अध्यक्ष महोदय, एचसीएस जुडिशरी के हमारे एग्जाम निकले, उसमें हमारे युवाओं ने पास किया, लेकिन
क्योंकि बीसी सर्टिफिकेट पर एक प्रश्न चिन्ह लगा। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी से, वो बताते हैं हमारी 60 बार तो मुख्यमंत्री निवास पर एंट्री होकर मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उम्मीद करते थे बैकवर्ड समाज से एक हमारा माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, गरीब का वो ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने युवाओं के हकों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एचसीएस जुडिशरी में 5 ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन उनके जो बीसी सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से वो बच्चे जो हैं आगे वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे एएमओ आपने लगाए थे, एएमओ की जो भर्ती हुई उसमें उनका बीसी सर्टिफिकेट का इश्यू आ गया, करीबन 84 बच्चे। अध्यक्ष महोदय, वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया कि आप इनके जो पुराने बीसी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं उनकी बिना पर इनको ज्वाइन करने का काम करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार इनके खिलाफ कोर्ट चली गई, नहीं ज्वाइन करवा रहे। क्या कारण है? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास का मेज थपथपाते हैं, लेकिन उनको नौकरी आपने देने का काम नहीं किया। आज के समय में 351 पीजीटी जिनके सर्टिफिकेट की कैटेगरी की वजह से रिजल्ट आए पड़े हैं, रिजल्ट की कॉपीज अध्यक्ष महोदय हमारे पास है, लेकिन आप उनको जो है वो ज्वाइनिंग देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरिट के आधार पर करने वाले युवाओं को भी, और फिर से यह रिप्रेजेंटेशन एक दिया गया कि अगर आपको वेरीफाई करना है, फैमिली आईडी में आपकी कास्ट है, और इन युवाओं ने जो मेंस क्लियर करने के बाद एचपीएससी में ये बात कहने का काम किया, बार बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इन पढ़े लिखे युवाओं के खिलाफ कोर्ट चला जाता है और सरकार उनके पक्ष में नहीं खड़ा होती। हमारा एजी ऑफिस क्या कर रहा है? एजी ऑफिस में एडवोकेट जनरल और इतने सारे एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल की जो फौज है, क्यों हमारे हरियाणा के युवाओं के हक की रक्षा करने का काम वो क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट ने कहा कि आप इनको ज्वाइन करवा लें, इनके सर्टिफिकेट्स को बाद में वेरीफाई कर लें, लेकिन नहीं, उनको ज्वाइन करवाने का काम नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से केवल 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को, ये पूरी लिस्ट है एमओस की सिलेक्शन की, और केवल इसलिए सरकार ने, एचपीएससी ने रोक रखी है कि उनके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुए। तो सर्टिफिकेट बनाएगा कौन और वेरीफाई कराएगा कौन? ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहती हूं, हमारे इसमें हमने ये कहा है कि हम बाहर के युवाओं को लगा रहे हैं, हमारे बच्चे, बताया जा रहा है कि एसपीएससी के चेयरमैन ने कहा हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। हरियाणा के बच्चे बहुत काबिल हैं, वो गुजरात में जाकर टॉप करते हैं, बिहार में हर जगह जाकर टॉप करते हैं। हरियाणा के बच्चों के मेरिटोरियस होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आज के समय में चाहे खेल की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारे हरियाणा के बच्चों ने हमेशा हरियाणा प्रदेश के नाम को रोशन करने का काम किया है। और अध्यक्ष महोदय, ये क्यों भर्तियां नहीं कर रही हैं? क्यों, क्या कारण है कि आज के समय में जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बीच में नहीं, तेजपाल जी, अध्यक्ष महोदय, ये किसी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं है जवाब देना, आप प्लीज बैठिए। जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हरियाणा के बच्चों को आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की या कोई और नौकरी आती है, आप कहते हैं कि आप इनएलिजिबल हैं, आप एनएफएस हैं, नॉन फाउंड सुटेबल आप कह देते हैं, और उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पीएचडी होल्डर्स को बुला रही है लेक्चरर बेसिस के लिए, और कितने पैसे में? 600 रुपया पर आवर, 300 रुपया पर आवर पढ़ाने के लिए 20,000 की तनख्वाह पर। क्या कारण है कि आप सरकारी नौकरी देकर उनको जो 1,00,000 2 लाख उनकी सैलरी बनती है, आप उनको देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो सुटेबल नहीं होते तो यूनिवर्सिटी उन्हीं पीएचडी स्कॉलर्स को, उन्हीं जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट को क्यों अपने यहां ऑफर के लिए लेटर देने का काम करती? अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करनाल की ओर से एक डाला गया, करनाल में राजकीय महाविद्यालय हेतु पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भेजने बारे एक पत्र जारी किया जाता है कि जो बच्चे पीएचडी हैं, जो जेआरएफ हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमारे कॉलेजेस में आके बच्चों को पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है वो अपनी फेलोशिप के लिए होता है, और उनको मुफ्त में तो आप ऑफर कर रहे हैं कि आप पढ़ा दें, और वैकेंसीज हैं, आज वैकेंसीज पड़ी हैं, इन्होंने वैकेंसीज पूरी संख्या लिखी हुई है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी। आप अपने कॉलेजेस में मुफ्त में पढ़ाने के लिए तो बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुला रहे हैं जिनको एचपीएससी और एसएससी फेल करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट आती है
कि आप अपने बच्चों को यहां पर भेज दें, 1 घंटा पढ़ाने के लिए, 2 घंटा पढ़ाने के लिए उनको दिहाड़ी दे दी जाएगी। क्या हमारे हरियाणा का युवा दिहाड़ीदार लगेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग द डिप्यूटिंग द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस। अध्यक्ष महोदय, सारी यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। सारे कॉलेजेस में जब शॉर्टेज है, केवल बात प्रोफेसर्स की नहीं है, जब सभी विभागों में शॉर्टेज है, आप हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत ठेके पर भर्ती करके उनके भविष्य को क्यों खराब करने का काम कर रहे हैं? और इन रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं 10,000, 15,000, इसी में इनकी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए हमारा बच्चा जो है आज का फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और बाहर के लोगों को, हमारे पास उसकी भी लिस्ट है, बाहर के जो स्कॉलर्स हैं अयोग्य होते हुए भी उनको यहां पर बुलाकर 15,000 में उनको बुलाने का आप काम कर रहे हैं। बीए पास लोग कॉलेज में जाकर पढ़ाई देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो केवल इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुए, बहुत ही गंभीर विषय का एडजर्नमेंट मोशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मूव जो करने का काम किया है, ये हमारे हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप एचपीएससी की वर्किंग पर कृपया करके ध्यान देने का काम करें। बहुत से लोग कहते हैं पर्ची खर्ची नहीं चल रही है, अटैची की अटैची एचपीएससी के दफ्तर में पकड़ी जा रही है। एचपीएससी के दफ्तर में अटैची की अटैची पकड़ी जा रही है और इन बच्चों से पैसे लेकर इनको दिहाड़ी पर रखा जा रहा है। मैं यही अनुरोध करूंगी, इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ आप अन्याय ना करते हुए जो वैकेंसीज हैं उनको रेगुलर तरीके से भरने का काम करें, युवाओं को अपनी उड़ान भरने दें, उनको अपने सपने सच करने दें और हरियाणा का नाम उनको जो है अच्छे ढंग से रोशन करने दें। और हमारे इन युवाओं के मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, नहीं तो इसी प्रकार से क्राइम और ड्रग्स में हमारा युवा चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करती हूं और पूरी तरह से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 लेकर आए, उसके समर्थन में पूरी तरह से मैं कहती हूं बहुत बहुत धन्यवाद।